Hello, friends. Welcome to Mind Parachute Training Show. Parachute works when it is open, so as mind. When it's open, then only it works. So, क्या है, बहुत बार हम एजुकेशन के बारे में बातें करते रहते हैं और बातें करते करते ऐसे भी दिमाग में ख्याल कुछ रिवॉल्यूशन होना चाहिए। जो चल रहा है उससे थोड़ा कुछ हटके होना चाहिए। जैसा सब लोग करते हैं वही हम करेंगे तो कैसा चलेगा। ऐसे बहुत बार अपने दिमाग में ये ख्याल आता है और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ख्याल पे काम करते हैं और कुछ नया हासिल करके दिखाते हैं। तो आज का हमारा जो शो है वो भी इसी धारणा पे आधारित है। इंटीग्रेटिंग वाइल्ड लाइफ या नेचर इन एजुकेशन। ऐसा एक अजीबो गरीब ख्याल किसी के मन में आया और उन्होंने कुछ अलग ही कर दिखाया। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है मेरे बहुत ही काबिल दोस्त निकिता पिंपले इनको इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। निकिता, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप एकदम हटके काम कर रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में कुछ नया कर रहे हो और ये शो उन्हीं के लिए है जो कुछ हटके कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो आप जो काम कर रहे हो काबिले तारीफ है। दोस्तों, निकिता का इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है, मैं भी पढ़ूंगा उनका इंट्रोडक्शन। यू विल बी हैप्पी। मतलब जो काम निकिता कर रही है वो एकदम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे ऋषि महर्षि लोग कर रहे थे इसी प्रकार का काम निकिता कर रहे हैं। करेक्ट निकिता? ट्राइंग आपके सर। स्कूल आपके स्कूल का नाम भी ऋषि वाल्मीकि स्कूल है। एम आई राइट? यस, यस, यस। So, friends, Nikita is educationist and environmentalist. She is the founder and principal of Rishi Valmiki Eco School at Gorega West, Mumbai, which aims to provide quality education with an emphasis on environmental conservation to the students from weaker financial group of society. This is very important. She's working for underprivileged people or for the weaker section financial group of the society. Nikita has created an extensive wildlife story-based curriculum called One. निकिता, आई एम सो एक्साइटेड। आपने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, ऋषि वाल्मीकि वन, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो शी इज गोइंग टू कनेक्ट children with nature and aim to a future greener generation. Future greener generation, mind this word. She is targeting to create future greener generation. Amazing. आपका विजन, आपका मिशन, hats off to that. Her wildlife stories has been published in print media, The Hindu. The Hindu print medium ने भी उसका कंसिडर करके इनका काम उसमें सहारा है। She has completed her remedial teacher course and actively working with kids who are finding difficulty to perform according to their grade. She has received an award, Change Maker for Indian Youth, by Innerville Club of Bombay Central in 2016. So congratulations, Nikita, for winning this award in 2016. थैंक यू सर, थैंक यू। She is recipient of the prestigious Sanctuary Asia Green Teacher Award in 2018. Amazing. मतलब at this young age, trying something extraordinary and you are doing really, really good. So friends, today on this show, we are going to interact with Nikita. निकिता जो ऋषि वाल्मीकि स्कूल की फाउंडर है और उसकी प्रिंसिपल भी है, और जो वाइल्ड लाइफ, नेचर, ग्रीनरी, ये सभी चीज मिला के जो वन वन बना रहे। तो आई एम श्योर आज हमारे शो पे हम बहुत ज्यादा वन 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 देखने वाले। एंड माइंड यू गाइस, आज का शो अलग है क्योंकि करिकुलम टोटली अलग है। तो आपको डेफिनेटली हजार सवाल हो गए और निकिता इज रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चंस। So friends, don't miss this opportunity. Nikita is charming lady, sweet spoken and doing extraordinary different work. So don't lose this opportunity. Interact with Nikita directly. Put your comments in comment box.
I'll be very happy to read your comment and ask your queries to Nikita on this live show. Also, I request all of you to please subscribe to YouTube channel of Mind Parachute Training and follow Mind Parachute Facebook page. Thank you. So Nikita, how are you feeling coming on Mind Parachute Training show? कैसे लग रहा है आपको? आपसे बात करके अभी मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है. सो आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड आई एम आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू आंसर योर क्वेश्चंस बिकॉज आई एम श्योर योर क्वेश्चंस वुड आल्सो बी वेरी डिफरेंट. सुपर, इतना मजा आने वाला है क्योंकि कुछ चेंज में कर. देखो, मैं रियल एस्टेट में वीकेंड होम सेलिंग करता हूं जो नेचर में है, नॉट इन कॉन्क्रीट जंगल. तो हम बंजर जमीन को एकदम अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करते, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड करके वहां पे फूड फॉरेस्ट या फ्रूट्स और फ्लावर फॉरेस्ट जैसे थीम हम लोग बनाते हैं. पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं और आप भी ग्रीन जनरेशन जनरेट करने के लिए एफर्ट डाले तो आपका और मेरा जो माइंडसेट है वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है. सो आई एम सो एक्साइटेड एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग. तृप्ति पिंपले, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शो लाइव. पवन, थैंक यू फॉर वाचिंग. Trupti Pimple is saying she is very kind and helpful. Thank you. Acha, she is your sister. That she's claiming that you lucky to have a sister. So good. So Nikita, I mean, आप जो ये काम कर रहे हो, ये आपको करने का मन क्यों किया? मतलब ये ऐसा अलग तरीके से करिकुलम बनाने का आपको कब सूझा? क्यों ये ऐसा आप कर रहे हो? What is the motive behind it? Motive is basically I was connected a lot with nature. It's because of my teacher, Dr. Parvish Pandya. He's ex-principal of vice principal of Bhavan's College. So he used to take us for nature trails. He used to take us for a lot of camps and everything. So that's how I fell in love with nature. So when I became a teacher and when students came to me, I felt that even as I love nature, my children should also love nature. Because when we will love it, then only we will feel like protecting it. So this is how there was no thought earlier. There was no plan earlier. It was just that I started teaching students and I saw that children are very much interested in learning about nature. They got connected with nature. And that time I realized that we are part of nature. And that's why every individual get fascinated to know about nature. So this is how then within 2 or 3 years, we realized that kids are enjoying it. And then gradually we develop syllabus and all other things. But the main motive behind it was my love for nature, and then we wanted to save and conserve environment and wanted my children also to understand this, that conservation of environment is very, very important. And being a younger generation, friends, I want to show some wonderful thing what Nikita, what she's saying, she means it. I mean, ऐसे नहीं कि शो पे आके बात करना इसलिए बात कर रहे हैं. तो वो जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कुछ काम दिखाना चाहता हूँ. यू कैन सी हर वेबसाइट. शी इज टेकिंग चिल्ड्रन टू नेचर. मतलब अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग किया जा रहा है. पूरा का पूरा करिकुलम जो इन्होंने जो नाम दिया है, पूरा का पूरा करिकुलम टोटली डिफरेंट है. तो आई एम सो एक्साइटेड टू नो. मतलब अलग अलग चीजें ये बच्चों के साथ ट्राई कर रहे हैं. गेम्स होते हैं, साइंस होता है, बट ये कुछ हटके है. इट इज नॉट रेगुलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो निकिता, आपने ये करिकुलम बनाया कैसे और इसका नाम वन क्यों रखा है? So one means forest, jungle, and E stands for values, A stands for academics, N for nurture, and N for nature. So हमारे one project के अंडर हम चारों चीजें कवर करते हैं. नेचर भी, नर्चर भी, नर्चरिंग not only nature but nurturing children also, and academics also, and nature is combined. So हम करते क्या मैं बताऊंगी. It is really very interesting. So stories सबको पसंद है, right? Stories, everybody loves stories. So what we did is for every standard, first standard, second standard till 7th standard, for every story we have written, for every standard we have written 15 stories. और ये स्टोरी जैसे हमने पंचतंत्रा पढ़ा था बचपन में, राइट? कि पंचतंत्रा में एनिमल स्टोरीज होते थे और उसमें से वैल्यू एजुकेशन होता था, पर वो ओल्ड पंचतंत्रा है. हम इसको मॉडर्न पंचतंत्रा बोलते हैं. इस वन प्रोजेक्ट के अंदर हमने नई स्टोरीज बनाई है जो भी एनिमल रिलेटेड है, लेकिन रियल एनिमल्स को लेके है.
एनिमल्स की रियल लाइफ, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे नेस्टिंग करते हैं, क्या फीडिंग करते हैं, उस बेसिस पे हमने ये स्टोरीज बनाई हैं। और ऐसे हर ग्रेड में 15 स्टोरीज है, और टोटल स्टोरीज अराउंड 40 to 50 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स कवर करते हैं। सो जब तक आप सोचो कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये पढ़ना शुरू करता है, जब तक 7th में पहुंच जाता है, तो कितनी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के बारे में उसने नॉलेज गैदर किया होगा। सो वन प्रोजेक्ट के अंडर ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव है कि बच्चे जाने कि नेचर क्या है। बस मेरे घर के सामने 2 पेड़ दिखते हैं और थोड़े से पंछी दिखते हैं, वो नेचर नहीं है। नेचर उससे हाँ, बहुत ज्यादा है, और वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ये मोटिव बराबर था। है। और अगर हम लेक्चर दे तो बच्चों को डेफिनेटली, बच्चे क्या बड़े भी बोर हो जाते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम लेक्चर थ्रू नहीं जाएंगे, स्टोरीज थ्रू जाएंगे। एंड आई टेल यू कि स्टोरीज से इवन थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे जिनका अटेंशन 10 या 15 मिनट होता है, बिकॉज ऑफ स्टोरीज वी कैन स्ट्रेच अप टू 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तक उनका अटेंशन होता है। और एनिमल स्टोरीज है तो फर्स्ट होता है कि हमें सुनना ही है। तो वन प्रोजेक्ट के अंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने अपना करिकुलम ऐसे क्रिएट किया है। उसके साथ हमारा, जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, राइट, स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। हमारा एक एडिशनल हम्म। सब्जेक्ट है वाइल्ड लाइफ, और अच्छा। उसके एग्जाम देते हुए बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। सो वो एक एडिशनल टेस्ट भी होती है, और रिजल्ट में हाउ मच इको फ्रेंडली यू आर, उसको भी मार्क्स होते हैं। सो ऐसे ये वन प्रोजेक्ट के अंडर हमने नेचर कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया है। जैसे आपने ये बताया कि अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स लेके आप उसको एक स्टोरी में डालते हैं। एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जो आपके वेबसाइट पे ही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So this is a skit done on flamingos. So flamingos के हाँ, बारे में आपको पता होगा कि गुजरात से फ्लेमिंगोज माइग्रेट करके मुंबई में आते हैं, एंड हाँ, अतिथि हाँ, देवो भव ऐसे हम कहते हैं। लेकिन हाँ, एक्चुअली हाँ, फ्लेमिंगोज के बारे में वैसे होता नहीं है, उनको बहुत स्ट्रगल होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन थिंग हैपेंड जहाँ पे वो आते हैं। तो और हाँ, हाँ, पोल्यूशन की वजह से, बिकॉज दे हाँ, हाँ, यू फाइंड देम नियर वाटर, और वाटर पोल्यूशन की वजह से इन बर्ड्स को बहुत तकलीफ होती है। तो ये स्किट हम्म, में हमने पूरे फ्लेमिंगोज की फीडिंग कैसे होती है, फ्लेमिंगोज की नेस्टिंग कैसे होती है। बच्चा जब फ्लेमिंगो होता है तब वो ग्रे कलर का होता है, जब बड़ा हो जाता है तो पिंक होता है। फिर पिंक क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ स्पेशल एल्गे खाता है, उसकी वजह से वो पिंक होता है। तो पूरे स्टोरी में हमने ये कवर किया था विद दिस थीम कि अतिथि देवो भव। सो जो वो मुंबई वाओ। में आते हैं तो हमें उनका ख्याल रखना है। सो तो क्या आप स्टैंडर्ड के बच्चे थे ये जो स्कीट में ये पार्टिसिपेट जिन्होंने सब किया था? सब सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड के थे ये। और आई विल टेल यू, उसमें से एक बच्चा अभी 10th पास आउट हो चुका है। ओह। And सो sir, गुड। he's a naturalist. Huh? He conducts अच्छा। trails anywhere in Mumbai. So he has become a naturalist now. He'll go in वाओ, 11th, but he conducts nature trails. वाओ। सेम गाय हु डज इन गोरेगा विश आरए में जो नेचर ट्रेल करवा रहा है, सेम So गाय? uh, नहीं, ये नेशनल पार्क में he goes and conduct trails. So there are a lot of other अच्छा। children also who are associated with Sanjay Gandhi National Park and conduct walks. Wow, so many of our friends are watching this show. Captain Bala, Veer Chakra awardee, he's watching our show. Thank you, sir. Sometime back, we had a very live discussion about our beloved nation, India, Bharat. And I'm so glad that you're watching this show. Good to be here. Thank you. Thank you. Our common friend, Anita, because of whom we are doing this show, she is watching it. Anita is saying, Nikita is one of my favorite educators. Their teaching methods are very, very unique. Yes, we are experiencing, because whatever I'm showing on screen from her website and whatever she explains means a lot. It's totally different. मैं अभी महसूस करना मुझे हो रहा है कि मैंने ये शो निकिता के साथ इतना लेट क्यों किया। ये पहले ही कर देना चाहिए था, बिफोर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस, क्योंकि निकिता इज डूइंग समथिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत पहले से निकिता वही काम कर रही है जो अभी नया एजुकेशन सिस्टम में शायद इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। तो वो जब होगा तब होगा, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी ऋषि वाल्मीकि स्कूल गोरेगांव में जो है मुंबई में, वहां पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। वाह, आई एम सो हैप्पी। Next is Nilima Sankhe. Nikita is the best teacher. Thank you. Thank you. So there are so many people watching this show, and I'm going to take their questions and their comments as we progress. तो मुझे ये पूछना है आपको कि वाइल्ड लाइफ इंटीग्रेशन एकेडमिक्स में इंटीग्रेशन करने की आपको ये जो आइडिया आई, ये जो इम्पोर्टेंस है, ये आपको क्यों महसूस हुआ कि ये करना चाहिए? कब और कैसे आपको ये सब लगा? Yes, yes, it is.
I think this pandemic is the best answer to this. Okay, this pandemic Oh, must have corona pandemic must have taught everyone that how much it is important to take care of wildlife and nature. And every year, nature is giving us some sign. These floods and increasing number of floods at various places is giving us sign. So, if बराबर we है. want our future generation, which is going to be taking care of this planet, if we want Hmm. them to be sensible person who take care of nature, who will come with policies, who will take their work ahead, keeping in mind that nature is the priority. They will think about sustainable development. They can be teachers, they can be engineers, doctors, they can be in hospitality, they can be politicians. In whichever field they go, they should be thinking about sustainable development. Then only it is possible that we can save our nature and environment. So with this thought, we thought ki if we want future generation to be eco-friendly, then we can teach them only when they are kids. We can connect them with nature when they are small, they are young, and in the school. So I use the word connect. I did not use the word we should educate them about nature. Connection and education different. So we need to connect them with nature now, so that once they grow up, they can protect this nature. And one more thing is, in education there is important priorities to academic studies, because अच्छे marks मिलेंगे, फिर अच्छी job मिलेगी, फिर अच्छी salary मिलेगी, तो we can survive. Then comes physical education, then comes this art, draw, drawing, dance, everything. Nature is not at all priority. But just tell me that for our survival, salary is important. But for our survival, fresh air and nature is more important, right? So nature has to have equal importance with this academics, equal importance. That's what is was our thought, and that's why we have equal importance to wildlife education with academics. And this is how I feel that wildlife education is very much important to be the part of education. सुपर. तो मुझे एक बताइए, आप इतने सालों से ये जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कर रहे, आपका जो करिकुलम है वन, इस करिकुलम के साथ में आप जो भी नया एक्सप्लोरिंग कर रहे हो एजुकेशन पैटर्न में, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट, Hmm. इम्पैक्ट आपके बच्चों पे कैसे हो रहा है? Yes, so there are many things, but I'll pick up some things to give you example. So first thing, if you pick up any random child from my हम्म. school and ask, हम्म. what do you like the most in the school? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? So every second child will tell you that कि मुझे nature education या फिर animal की studies करना पसंद है. So I think that's the हम्म. first impact कि पढ़ाई के बारे में interest निर्माण होना, वो इंटरेस्ट जनरेट होना, ये नेचर एजुकेशन ने किया है हमारे स्कूल में. एंड एज सुपर. यू करेक्टली सेड दैट बच्चे कम्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, जहाँ पे ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रगल लेके आते हैं. तो जब स्कूल में आके इतना अच्छा माहौल हो, ये नेचर एजुकेशन के बारे में पढ़ते, तो वो सब भी भूल जाते हैं. Second example is now during this COVID, my many children have been migrated to their native places. वहां हम्म. से बच्चे कनेक्टेड है इधर थ्रू व्हाट्सएप और फोन कॉल्स, और वो क्या कर रहे होंगे वहां पे, आप सोचो. वो वहां पे बर्डिंग कर रहे हैं, पंछी देख रहे हैं, और उसके फोटोज भेज रहे हैं कि मैम इसका आईडी क्या है, कि या ये बर्ड मैंने देखा, इसकी मेल देखी, इसके फीमेल देखी, इसका नेस्ट देखा. सो यू कैन थिंक व्हाट अ वंडरफुल हॉबी चिल्ड्रन हैव गॉट. एंड इसकी वजह से सारे लाइफ स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, हम्म. क्यूरियोसिटी, interest, everything is increasing among children. So that's the biggest impact on children, I would say, कि they are developing in their life skills. And empathy is very very important, कि जानवरों के बारे में, और जो जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं या जो लोग नेचर से प्यार करते हैं, वो इंसानों से भी प्यार करते हैं. सो ये जो एम्पथी है ना, वो बच्चों में बहुत बड़ी है नेचर एजुकेशन की वजह से. और बाकी देर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक नॉलेज इज बिगेस्ट थिंग व्हाट माय चिल्ड्रन हैव गॉट. सो अगर वो जैसे ही प्रीमाइसेस के बाहर जाते हैं, तो जितने भी ट्रीज है प्रीमाइसेस में, ऑल माय सेकेंडरी सेक्शन चिल्ड्रन नो द नेम ऑफ द प्लांट्स और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये जो नॉलेज है, वो उनको बहुत ज्यादा साइंस और ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है. बिकॉज व्हाट इज देयर इन 8-9, उससे ज्यादा ही उनको ऑलरेडी बॉटनी और जूलॉजी का पता है थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में, कि क्या क्या है. सो दिस सुपर. इज आई वुड से कि दिस इज व्हाट आई कैन सी इन माय चिल्ड्रन, द इम्पैक्ट. आप जो कर रहे हो वो रिवॉल्यूशनरी मेथड है एजुकेशन सेक्टर में. तो गवर्नमेंट का एक सिलेबस है, एसएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, आईजीएसई बोर्ड है, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स है. ओके, आपने एक वन करिकुलम बना लिया है. सो आप कौन से बोर्ड को फॉलो कर रहे हो? आई मीन, आपका एसएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसमें आपने वन करिकुलम इंटीग्रेट कर लिया है, या आप सिर्फ वन करिकुलम ही करते हो
तो अगर वैसा करते तो फिर उसके एग्जाम कैसे होते, बच्चे आगे कैसे बढ़ते? आई वांट टू नो दैट, बहुत क्यूरियोसिटी मुझे ये जानने के लिए। So we follow a state board syllabus. अपना महाराष्ट्र ओके, state board syllabus we follow, and with that ओके, we have integrated one. So one is a separate subject with all the state board syllabus. This is extra. अच्छा, And मतलब हर yeah, एक करिकुलम जो है स्टेट बोर्ड का, एसएससी बोर्ड का जो करिकुलम है, उसी को आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड में आप सिखा रहे हो वो सब, और hmm, एडिशनली आपने वन जो yeah, आपका कस्टमाइज करिकुलम है hmm, उसको इंटीग्रेट कर लिया है। इज इट yes, करेक्ट? yes, अब correct. मुझे यहाँ पे एक बताना चाहता हूं मैं कि बच्चे ऑलरेडी परेशान है पढ़ाई 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 इतने अलग अलग सब्जेक्ट करके, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट लाने से आपको नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर आ रहा है? प्रेशर, आई थिंक लर्निंग इज इनहेरेंट. किसी को भी लर्निंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है. कुछ नया सीखने में हर एक को मजा आता है. आप कैसा अच्छा, सिखाते हो और आप कितना प्रेशर डालते हो उस पर डिपेंड करता है. तो ये एग्जाम है और मुझे पढ़ाई करनी है, इस तरीके का प्रेशर बच्चों पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं है. किसी भी नहीं, मतलब अदर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है. तो फिर वाइल्ड लाइफ का हम्म, टेंशन तो बिल्कुल भी आने आने का सवाल ही नहीं उठता. दूसरी बात, जैसे ये सारे सिलेबस है वो भी हम थ्रू एक्टिविटीज पढ़ाते हैं. So, एक तो गेम्स के थ्रू होता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होता है, या फिर स्टोरीज के थ्रू होता है. सो हमारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारी टीचर्स तो स्टोरीज के थ्रू समझाती है, तो मजा ही आता है. सो ये अच्छा, बच्चे खुद कहते हैं. तो मुझे, सो मैंने तो आई कभी मेरे थिंक बच्चों, व्हाट यू आर डूइंग इट्स अ फन लर्निंग। फन लर्निंग, यस 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 फन यस. लर्निंग हो गया ये। एंड आपके वेबसाइट पे मैंने देखा है कि बहुत सारे तरीके, आप नए नए मेथोडोलॉजी आपके करिकुलम में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बारे में मुझे जानने की इच्छा है। जैसे कि आपके वेबसाइट पे दिख रहा है कि आप अलग अलग करिकुलम, वाइल्ड लाइफ करिकुलम इंक्लूड कर रहे हो, देन रेमेडियल प्रोग्राम कर रहे हो, को यस करिकुलम एक्टिविटीज कर रहे हो, यंग एजुकेटर्स आप कर रहे हो, यस. हाँ पेरेंट एंगेजमेंट, मतलब शायद पिताजी है जो बच्ची की चोटी बना रहे हैं, इतना हाँ. खूबसूरत सा फोटोग्राफ है, देन एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट। तो ये जो है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट, हर एक स्कूल अलग अलग यस करता है, आपने यस. कुछ अलग किया हुआ है। तो हाउ, क्योंकि को करिकुलम एक्टिविटी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी स्कूल में है, पेरेंट या. एंगेजमेंट प्रोग्राम भी होता है, बट यहाँ पे चोटी बनाने का अभी तक मैंने मेरे बच्चों के स्कूल में जाके चोटी नहीं बनाई है, ये कुछ यस. अलग लग रहा है मुझे। हाँ सो हाँ यंग एजुकेटर, पेरेंट एंगेजमेंट एंड एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। हाँ. तो ये तीन चीजों के ऊपर कुछ आप बता सकेंगे तो अच्छा Yes, होगा। definitely. So, sir, we call it 360 degree development कि बच्चों के academic के साथ बाकी सारी चीजों की भी डेवलपमेंट हो. तो फर्स्ट आई विल ओके, स्टार्ट विद पेरेंट एंगेजमेंट. यू करेक्टली सेड कि पेरेंट एंगेजमेंट बहुत सारे स्कूल में होता है, पर यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है. अलग ये है हाँ, कि हमारा पेरेंट एंगेजमेंट की एक्टिविटी फोकस इस पे है कि बहुत सारे फादर्स या मॉम्स ऑल्सो दे आर अनेबल टू गिव टाइम टू देयर किड्स. तो हमारी एक्टिविटीज पूरी ऐसी ऐसी हमने डिजाइन की होती है कि जहाँ पे मॉम या फिर डैड अपने बच्चों को समझे और बच्चे मम्मी पापा को समझे. तो जैसे बहुत सारे अच्छा, काम होते हैं जो पापा बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो सारे काम उस हाँ, दिन, हाँ, बैग भरने का काम, चोटी बांधने का काम, तेल लगाने का काम, तो तेल बच्चे पापा को लगाते हैं. तो ये सारी अच्छा, एक्टिविटीज हम करती है बॉन्डिंग के लिए. और अच्छा, फिर ये एक हो गया. और दूसरा, बहुत सारे गेम्स होते हैं जहाँ, मैं यहाँ पे ना एक्चुअली एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा. कि मेरी एक स्टूडेंट है, अभी 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो गई, ये 8th स्टैंडर्ड में जब थी, तो उसके पापा को मैंने कभी भी नहीं देखा था स्कूल में. तो पापा घर पे रहते थे, काम में बिजी रहते थे, कभी भी स्कूल में नहीं आते थे. और अच्छा, उसका भाई या उन भाई की वाइफ, वही हमेशा स्कूल में आते थे. और हमेशा हर चीज के लिए उसको ना बोलते थे. एनुअल डे ना, पिकनिक ना, हर चीज के लिए ना. तो धीरे धीरे 3 साल हो गए थे उसको ऑलरेडी स्कूल में. तो धीरे धीरे ना मैं फोन करके बात करती थी उनसे कि पिकनिक के लिए भेजो, मैं खुद हूँ. तो एक बार उन्होंने, मतलब भेज कैसे दिया मुझे भी नहीं पता, पर भेज दिया अच्छा, और मेरे तक वो आ गई. फिर जब हाँ, फादर्स हाँ, डे था, तो उसने कहा था मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं आएंगे. पर इतने 3 सालों से जो बार बार का फोन था, पुश था, फादर्स डे के एक दिन पहले भी मैंने फोन किया कि प्लीज आप आइए, आपके बेटी को अच्छा लगेगा. आधा दिन ऑलरेडी हो गया था फादर्स डे का, बट वी कुड नॉट सी हर फादर देयर. और अचानक चिल्लाते हुए मेरे पास आई भाग के, कनीज उसका नाम है, चिल्लाते हुए भागते आई और बोले कि अब्बू आ गए हैं मैम, अब्बू आ गए.
और तब हम्म। पूरा नेक्स्ट 1.5 आवर सारे के सारे गेम्स उसके अब्बू ने उसके साथ खेले। तो दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कि ये सुपर। बॉन्ड बच्चों के साथ क्रिएट करना, उसके लिए कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 10 साल भी पूरे लग जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर बिजी ना, उनकी उनके लाइफ प्रॉब्लम्स में भी बहुत बिजी रहते हैं, ऐसे नहीं कि उनको टाइम नहीं देना है। बट स्कूल एक माध्यम बन जाता है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहे हो पेरेंट एंगेजमेंट? आप इसलिए कर रहे हो कि बच्चे और पेरेंट्स का रिश्ता स्ट्रांग हो। तो इसीलिए वो स्ट्रांग होने के लिए ये एक्टिविटीज हम डिजाइन करते हैं। फिर डांस होता है, बच्चे और पेरेंट्स साथ में डांस भी करते हैं। फिर अच्छा। पेरेंट्स कोरियोग्राफ करते हैं बच्चों का डांस। तो पेरेंट एंगेजमेंट बहुत हाँ। वंडरफुल एक्टिविटी होती है स्कूल में। हर पेरेंट एंगेजमेंट डे पे एक तो पेरेंट रोके जाते हैं, एक तो पेरेंट रोके जाते हैं। सो दैट या टाइप ऑफ आपने यू आपने कैन। पर्पसली ऐसा सिलेबस तो नहीं बना कि पेरेंट रोके जाना ही चाहिए, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा इस प्रोग्राम का? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बट एक रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि बच्चों को आपका आई एम साथ श्योर। और आपका कॉन्फिडेंस और आपका विश्वास बहुत जरूरी है, जो शायद हर कोई पेरेंट्स भूलने लगा है आजकल, जानबूझ के नहीं, बट बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड ऑल। सो एज ए टीचर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेल देम कि व्हाट योर चाइल्ड नीड्स। सो दिस इज हाउ पेरेंट एंगेजमेंट इज डन। एंड सेकेंड एक्टिविटी, रेमिडियल एजुकेशन। सो व्हेन वी वर डूइंग एकेडमिक्स वी रियलाइज कि इतनी मेहनत लेने के बाद, ये एक्टिविटी बेस्ड स्टोरी बेस्ड करिकुलम है हमारा, नेचर एजुकेशन है, करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अभी भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो दो चांसेस थे, एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या फिर दूसरा चांस था कि एनवायरनमेंट की वजह से जहां से वो आते हैं वहां पे ऐसा माहौल नहीं है पढ़ाई का, इसीलिए वो पढ़ाई में कमजोर रह रहे हैं। तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, नहीं है अभी भी, कि हम कोई रेमिडियल कोच रख सके, अच्छी टीचर्स रख सके जो रेमिडियल एक्सपर्ट है। टीचर्स नहीं है बट रेमिडियल में है, और रेमिडियल टीचर्स की सैलरी भी बहुत हाई होती है। सो ओके। एज यू ऑल्सो सेइंग कि कभी ना नहीं बोलना है, सॉल्यूशन ढूंढना होता है हमेशा। सो आई ओनली लर्न दिस रेमिडियल, आई डिड दिस रेमिडियल ट्रेनिंग, मैंने खुद सीख लिया 1 साल का कोर्स करके। एंड देन मेरी टीचर्स की टीम बनाई और हमने 3-4 टीचर्स मिलके मैंने उनको सिखाया जैसे मुझे आता जितना, और मेरी जो ट्रेनर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज में। एंड दिस इज हाउ वी मेड अ टीम। और अभी जाके रेमिडियल का प्रॉपर सेटअप है। और खुशखबरी ये है कि 2-3 साल के बाद इवन माई टीचर हु ट्रेन्ड मी, ध्वनि सुतारिया, शी ऑल्सो ज्वाइंड इट, एंड नाउ शी इज टेकिंग इट अहेड, शी इज एक्चुअली सपोर्टिंग द कॉज. So this remedial education is a different syllabus where children are taught in a different way, and जो परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं होते उनके ग्रेड के, वहां तक उनको लाया जाता है अलग से क्लासेस लेके, स्पेशल क्लासेस लेके. So I feel proud that we have this setup because most of the SSC board schools don't provide this setup. Even international schools, some of them provide this support with additional cost sometimes, but we could do it. So I'm very happy and thankful to people who are supporting. So this is about remedial education वाह। and young आपके teachers. वेबसाइट के ऊपर, हाँ, आपके वेबसाइट के ऊपर अलग अलग मेथड्स आपने डिफाइन कर दिए हैं। सो जैसे कि आपने बताया कि रेमेडियल प्रोग्राम है, को करिकुलर एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है, यंग एजुकेटर एक अलग कुछ दिख रहा है Yes. अभी इसमें, एंड एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट कुछ मुझे दिख रहा है। यस, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। So young educator बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है. So young educators में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, थर्ड अच्छा। स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सेकेंड स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, तो ये हमारा वाह। ऑनगोइंग प्रोग्राम है. हर क्लासेस में से जैसे कुछ बच्चे हैं जिनमें बहुत एनर्जी होती है एंड देयर इज सो मच टू गिव, तो ऑलरेडी जिनको उतना जो मिल रहा है ना वो काफी नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइंड है कि ठीक है अभी तुम्हें ऑलरेडी सब आता है ना, अभी यू गिव इट टू अदर्स. सो इसमें से वाह। उनका नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग होता है, और सर बच्चे बच्चों की बहुत अच्छे से सुनते हैं. सो अच्छा। हमारे यंग टीचर, टीचर से ज्यादा बच्चों से सुनते हैं। यस, और जब यंग टीचर्स क्लास में जाते हैं ना तो वो ऐसे क्लासेस लेते हैं आपको लगेगा इन्होंने बीएड या डीएड किया है क्या, इतना वाह। अच्छे से पढ़ाते हैं. एंड आई एम रियली प्राउड सुपर। ऑफ देम. सो ये कोर्स ऑनगोइंग फुल साल हमारा चलता है यंग एजुकेटर्स का, एंड दिस किड्स टेस्ट. एंड सिमिलरली यंग नेचुरलिस्ट भी हमारा प्रोग्राम है. तो यंग नेचुरलिस्ट में नेचर एजुकेशन की पढ़ाई ये करवाते हैं, तो जो बच्चे नेचर में बहुत अच्छे हैं, तो वो 6, 7, 8 और 9 के बच्चे, उनको यंग नेचुरलिस्ट का बैच मिलता है. जैसे बाकी अच्छा। स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, वैसे हमारे स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल है, पर एक और है हाँ। नेचुरलिस्ट हेड. सो वो जो है अच्छा। वो पूरे स्कूल का नेचर एजुकेशन के ख्याल रखता है. तो 25 स्टूडेंट्स की हमारी बैच है. तो फर्स्ट टू 7 स्टैंडर्ड को 1 का सिलेबस ये बच्चे पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाते अभी. पहले हम पढ़ाते थे, अभी मुझे जरूरत ही नहीं है क्लास में जाने की, ये इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो मुझे भी सिखा लेते हैं. फ्रेंड्स, निकिता इतना अच्छा काम कर रही है,
उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्शन लिए हैं, सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया है। ऋषि वाल्मीकि स्कूल में वन करिकुलम इम्प्लीमेंट करके। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का इंटरेक्शन में निकिता इनके साथ कर रहा हूं। आप सभी लोग ऑनलाइन ये शो लाइव देख रहे हो, कुछ नया डिस्कशन हो रहा है। मतलब अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडीज, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड सब अलग एक जगह पे रख के हम वन करके जो करिकुलम है वो एसएससी बोर्ड में इन्होंने इंटीग्रेट किया है। सो आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स। आपको कैसे लग रहा है जो निकिता ने उनका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन किया है, या उन्होंने उनका वन करिकुलम बनाने का पर्पस मेंशन किया है अभी इस शो पे, तो आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है? आई वॉन्ट यू टू राइट दैट इन कमेंट, जिससे निकिता विल ऑल्सो फील गुड कि हाँ, मैं शो पे आके मैंने कुछ बताया और लाइव ऑडियंस ने उसको सराहना, और वो उन्होंने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया। सो निकिता, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट फ्लैमिंगो एक्टिविटी एंड ऑल. So Kritika Bala, she is saying this: the skit about flamingos is a wonderful way to teach avian science to children. Congratulations. So Kritika Bala आपको congratulations बता रहे। शायद आपकी आंटी है नीलिमा संखे, मराठी में बोल रही है, निकिताकडून खूपच शिकण्यासारखं असतं, ती सर्व गुण संपन्न आहे, मी तिची मावशी, काहीतरी नवीन ज्ञान मुलांना देणे ही ती सर्व मनापासून करते. थँक्यू सो मच नीलिमा मावशी, मी पण मावशीच म्हणतो. थँक्यू. ओके, नितीन इज सेइंग हाय. अरुणा नायर, वन ऑफ द अर्लियर स्पीकर ऑफ माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो, जिन्होंने ट्रेडमार्क आईपीआर के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज इम्पार्ट किया था लाइव शो पे. शी इज सेइंग, निकिता, इट्स अ प्लेजर सीइंग यू, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल. थैंक यू. So there are so many people. Indu Girish is saying would love to know more about this method of schooling. Yes, Nikita is explaining that, and आप जरूर उनकी वेबसाइट भी देखिए. She is having beautiful website, और उसमें बहुत सारा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. प्रकाश घाटे is watching and good evening, excellent show बता रहे हैं. I'm so glad my one of the top viewer of Mind Parachute Training, Lata Venkat Madam, she's watching. She's also principal. I'm sure you must be knowing Nikita. Lata Madam is watching it. I'm so glad one principal is watching show of other principal. Thank you, Lata Madam. Nayan Pimple is saying, congratulations Nikita, I'm proud of you, great work. Wow. Nikita, now again Anita is saying, Nikita, my respect for you increases day by day. Your teaching methodologies will make kids more confident and ready to face the world with full confidence, with a special human touch. So nice, Anita, you are a gem star, rock star. You are connecting me with many good personalities like Nikita, and that's why our show Mind Parachute is going a different level. We are achieving great heights day by day with your support. Thank you so much, Anita, being our support. Thank you, Anita. So moving forward, on your website, I found one more unique thing. There is one kind of tree. एक tree आपके website पे display है. मुझे इस tree के बारे में कुछ बताइए आप. Total beneficiaries of days 2967. कुछ Yes. यूनिक आपने किया है इस ट्री में, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर, दिस इज ओवरऑल इम्पैक्ट. बेसिकली हम 10 साल से काम कर रहे हैं, पर मुझे ये बात बताने में बहुत प्राउड फील होगा कि मैं 10 साल से कर रही हूँ, पर मेरे पिताजी 35 इयर्स से कर रहे हैं. सो ही इज ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट, मिस्टर प्रकाश पिंपले, एंड माई मदर मिसेस प्रणीता पिंपले. सो मनोरी जो मारवे आपने सुना होगा, वहां पे उनका स्कूल है जो उन्होंने स्टार्ट किया था मेरे फादर ने अराउंड 27 इयर्स बैक, और वो आदिवासी लोगों के लिए स्कूल चलाते हैं, और 10 साल पहले ये हमने स्कूल शुरू किया. तो वो आप ट्री में जो 2967 देख रहे हो, वो बच्चों का नंबर है जो इतने बच्चों तक हम अभी तक पहुंच पाए हैं, मनोरी स्कूल की वजह से भी, गोरेगांव स्कूल की वजह से भी, एंड ऑल्सो ये जो वन प्रोजेक्ट है वो और एक बैंड्रा के स्कूल में भी हमने लोढ़ा फाउंडेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया 2 साल के लिए, तो वहां भी हम 400 बच्चों तक पहुंचे हैं. सो ऐसे हम 2967 बच्चों तक अभी तक पहुंचे हैं. और वो जो राउंड में सर्कल में वो ट्री में जो आप देख सकते हो, वो बच्चों का हमारे प्रोग्रेस है. सो जब हमने 10 साल पहले ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल स्टार्ट किया था, तो डे 1 पे सिर्फ 9 बच्चे थे सर, और अभी आज 565 स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल में.
पूरे नर्सरी से लेके 10th तक। और गर्ल्स, यस, ये मुझे बताने में बहुत दिलचस्पी है कि जब हमने स्कूल शुरू किया था तब गर्ल्स का नंबर बहुत कम था, बॉयज ज्यादा होते थे। और अभी भी आप बहुत सारे लोगों को अभी भी शॉकिंग लगता है कि बहुत सारे स्कूल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बॉयज को हमारे स्कूल में डालते हैं और उनकी जो बहनें हैं छोटी या बड़ी उनको बीएमसी स्कूल में डालते हैं, क्योंकि वहां पे फ्री एजुकेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी नॉमिनल फीस है, बट फिर भी फीस देके अच्छे स्कूल में पढ़ाना है लड़कों को और लड़कियों को नहीं। लेकिन अच्छा। अभी इतने 10 साल के इंटरेक्शन के बाद इतने सारे वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा, पेरेंट्स एकदम फैमिली टाइप है। तो ये जब बॉन्ड और इसकी वजह से इतना वर्कशॉप्स की वजह से चेंजेस है कि अभी 16% ज्यादा लड़कियां हैं और बॉयज बॉयज से ज्यादा, मतलब अराउंड 45 to 46% गर्ल्स है हमारे स्कूल में। सो इट इज ऑलमोस्ट नाउ नियर टू 50%। सो कुछ सालों में शायद 50-50% बॉयज एंड गर्ल्स हमारे स्कूल में हो जाएंगे, जब 20 या 22% गर्ल्स थी पहले। और एक इंसिडेंट अगर मुझे अब टाइम दो तो मैं शेयर करूंगी, बहुत अच्छा। यस यस। हमारा स्टूडेंट है, जब वो 4th में था, अभी 10th पास आउट हुआ है, हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया था। और अगेन थ्रू स्टोरीज, वो टिपिकल बुक्स पढ़ के हम नहीं पढ़ाते, हमने बहुत सारी शिवाजी महाराज की अलग अलग स्टोरीज निकाली है जो शिवाजी महाराज के स्वभाव के बारे में बात करती है, जो बुक में नहीं है। तो उसमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में था। और जब हमने वो पढ़ाया बच्चों को कि कैसे जेंडर और रिलीजन इक्वालिटी शिवाजी महाराज मानते थे, तो मैंने बच्चों को पूछा, आपको आजू बाजू में जेंडर इक्वालिटी दिखती है क्या? तब मेरे स्टूडेंट्स ने बोला था नहीं। और सर तब तक मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तब मुझे बच्चों ने बताया कि मेरी बहन तो बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते, और हमें ज्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाती है बॉयज को। तब मुझे पता चला। तो मैंने उनको ऐसे ही समझाया कि देखो, आप पे जिम्मेदारी है, आप खुद सीखो और बहनों को समझाओ। पर ये इंटरेक्शन के बाद 4th स्टैंडर्ड के एंड में जब 5th का एडमिशन शुरू हुआ, तो एक लड़के की जो बहन को लेके उसकी मम्मी आई कि मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, वो कह रहा है एक तो दोनों साथ में यही स्कूल में जाएंगे, नहीं तो दोनों बीएमसी में जाएंगे। और वो स्टोरी वाओ। इतनी हिट हुई और इतनी इंस्पिरेशन बनी बाकी पेरेंट्स के लिए। उसके बाद उनकी बेटी अभी अभी भी हमारे ही स्कूल में है। बेटा 10th पास आउट हुआ, अभी बेटी है अच्छा। स्कूल में। सो ये बहुत सुपर। इंस्पिरेशनल चीज हुई थी जो बच्चे ने की। आप वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं आपके करिकुलम में, तो मुझे अभी एक पूछना है, जो अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है जो आप पढ़ा रहे हैं करिकुलम में, उसमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपके साथ रिलेट करता है? हाँ, एलिफेंट है। एलिफेंट मुझसे बहुत रिलेट करता है। एलिफेंट बिकॉज एलिफेंट्स आर वेरी मदरली। सो एलिफेंट्स जो होते हैं, जो मदर्स सारे एक साथ रहते हैं, फीमेल्स, लड़कियां, फीमेल्स जो हाँ होती है, और वो दूसरों हाँ। के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह संभालते हैं। और अच्छा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना प्यार वो सबके बच्चों को देते हैं। तो इसलिए मैं खुद को एलिफेंट से बहुत रिलेट करती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ, बाकी ये जो बच्चे हैं वो भी सारे मेरे ही है। और अब एकदम सच में, मतलब मेरे जैसी, ये जब मुझे नींद नहीं आती, इनको इनकी कोई भी परेशानी होती है। अभी इनका 10th का एडमिशन सब चल रहा है, 11th का। सो आई एम हम्म। कंप्लीटली इन्वॉल्व। सो यस, दैट्स व्हाई आई रिलेट माई सेल्फ विद एलिफेंट। अच्छा, तो आप जो एक तरीके का करिकुलम इम्पार्ट कर रहे हो, अलग तरीके की चीजें कर रहे हो, हाउ इजी इट इज, मतलब थोड़ा हटके है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए शायद कॉस्ट जरा ज्यादा होता रहेगा, और आप सरप्राइजिंगली अलग हटके करके भी आपका जो टारगेट है स्टूडेंट का, वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है। हाउ डू यू मैनेज इट, मतलब दिस इज समथिंग यस रियली सर। सो डिफरेंट। थैंक यू सर। सो बेसिकली आई वुड से कि नेचर एजुकेशन के लिए मैं खुद और मेरी टीम मैंने बनाई है जो हमें सपोर्ट करती है। नेचुरलिस्ट है बहुत सारे जो हमें सपोर्ट करते हैं। पोर्शन तो हमने बनाया है, मैं और मेरे टीम मेंबर्स ने पोर्शन बनाया है। और अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे बच्चे ही तैयार हो गए हैं, तो मुझे अभी किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। बट यस, किसी और स्कूल में करना है तो डेफिनेटली इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। बट मेरे स्कूल में यस, मैंने अपने बच्चों को ही इतना ट्रेन कर दिया है कि नाउ दे ओनली कैन टेक इट अहेड। ये एक चीज हो गई। और बाकी सारी जो एक्टिविटीज इतनी सारी होती है, जैसे कैंप्स जाना है, पिकनिक जानी है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। सो वी रियली डिपेंड ईदर ऑन डोनेशन या फिर एसोसिएशन। तो जैसे वी कीप ऑन टॉकिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो अभी हम लोग 3 बार डांग, 2 बार डांग गुजरात में जाके आए, तो वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अभी यहाँ पे जो बोरिवली में भी जो हमारे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो भी बहुत सपोर्टिव है।
सो ये सारे लोग जब अच्छा काम हो रहा है दिखते हैं तो सपोर्ट करते हैं, बस वी हैव टू वेट। मतलब समझो कि हर साल नहीं हो पाता, पर जब भी कभी सपोर्ट मिलता है तो हम थोड़ा सा हमारी तरफ से डोनेशन खड़ा कर देते हैं, या सेविंग्स होते हैं वो डाल देते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे स्पेंड नहीं कर पाते। फिर बहुत सारे एनजीओ से हम टाइप करते हैं। अभी स्पोर्ट्स के लिए इट इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव टाइप विद अस। सो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे लोगों के पास से जो डोनेशन आता है उसी बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि फीस में तो इट इज, मतलब रेगुलर एजुकेशन भी फीस में पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी हमारी फीस से 6,000 ज्यादा खर्चा होता है हमारा हर बच्चे के पीछे, हर बच्चे के पीछे। सो ऑलरेडी इट इज, बट येस वी आर एबल टू मैनेज, बिकॉज आई बिलीव कि आप कुछ अच्छा काम करते हो तो अपने आप अच्छे लोग आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं। और आज तक तो सर हम ऐसे ही 10 साल निकाल पाए हैं। वाह, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब आप किसी भी चीज को सच्चे मन से चाहते तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए कोशिश, साजिश, जो भी शब्द है। आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग डायलॉग, बट ऐसा कुछ मुझे लगा आपसे सुन के अभी। बट आई एंड ट्रूली बिलीव दिस सर, आई ट्रूली बिलीव दिस डायलॉग। very nice. Anita is saying, I feel so good to name our second son, who is 5 years now, as Rishi. Wow. See, what a coincidence. Anita जी का जो सेकंड चाइल्ड है 5 साल का, उनका नाम भी उन्होंने ऋषि रखा, और आपके स्कूल का नाम भी ऋषि वाल्मीकि स्कूल है. I am feeling so good. Kunal Shanbag is there. He's saying, Hi Nikita. We friends have been together for more than 15 years now. But a friend who inspires us is you. You are doing an exceptional work for the society. Thank you, Kunal, for sharing Thank such a you. lovely comments on this live show. Friends, we are at the end of today's session. Before we end, I humbly request all of you to please subscribe to YouTube channel of Mind Parachute Training. तो आपको निकिता जैसे और अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनने को मिलेगा. These are all ट्रेंड सेटर्स, ये चेंज मेकर है, कुछ अलग कर रहे हैं. ऐसे अलग अलग स्पीकर्स हम माइंड पैराशूट ट्रेनिंग पे शो पे लेके आते हैं, और उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे फेसबुक का जो पेज है माइंड पैराशूट ट्रेनिंग, उसको फॉलो करोगे या यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करोगे. निकिता, बिफोर वी एंड टुडे शो, योर लास्ट शॉट. Uh, I want to tell people that if you want to make a difference in the society, uh, then you can definitely do it. If you're willing to make a difference, you can definitely do it. If you are willing to do it any time, like people come across and support you. So this is what I have learned in my 10 years of journey with Rishi Valmiki Eco School, that nothing is impossible. Just willingness is important. And there are a lot of children outside need us. There are many kids, means I'm not enough. I'm surely not enough for, I have able to reach up to only 567 children, but I can see there are many other children who need us. So we have to come together to support our kids and every child in our country, and support us, support Rishi Valmiki Eco School. That's what I want to say. Wow, that's an amazing thought, friends. With this, we are about to end today's show. I request all of you to please contact Nikita Pimple to practically experience what she's doing immediately after the lockdown is over, pandemic is over. Connect with her on her email ID nikita@rves.org and or 9664737308. She is such a talented, you know, founder and principal. So at such a young age, she is doing such a notable job. Awards भी उनको मिला है गेम चेंजर के लिए और ग्रीन एजुकेशनिस्ट करके. So she is too good. Connect with her and moreover support the cause. Help her to continue her journey, her mission of creating greener generation. That's very important. So thank you so much for watching this show. By taking today's last comment, Anita Nair, it will be our pleasure to support Nikita in any way possible towards this good cause. Thank you, Anita. Thank you, Nikita. Thank you, Thank all you. live audience, for watching this show regularly and loving us.
And please help Rishi Valmiki School. Check the website. Connect with her on email. Thank you so much. Thank you, Nikita, for coming on this live Thank show. you, sir. Thank you so much.